Very good morning, Muskan and class. Please start. Today, the topic of my presentation is Reliance Jio. So, in this content, we are going to read about Reliance Jio. बाबू बहुत आवाज आ रही है, तुम थोड़ा अच्छी जगह पे बैठो, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तब ठीक है, बोलिए। In this, we are going to read about Reliance Jio, its history, mission and vision, objectives, strengths and weakness, opportunity and threats, data exposure, and last but not the least, conclusion. So this is the symbol of Reliance Jio. Now it is changed. Maybe its color become blue. About Reliance Jio Infocom Limited is an Indian mobile network operator owned by Reliance Industries. Its headquarters is in Navi Mumbai, Maharashtra. Founder of Reliance Jio is Mukesh Ambani. It is founded in 2007. Jio became publicly available on 5th September 2016. The subscriber base of Jio is 227 million. Okay. Jio is LTE mobile network operator in India, which is wholly armed subsidiary of Reliance Industries with coverage across all 22 circles in India. Jio एक पहला सिम था जिसमें what is LTE? LTE क्या है? LTE means हिमांशु आप बताइए LTE क्या है, सर्च करके। What is LTE? LTE को सर्च करके बताइए what is LTE. मतलब this we need to know actually. It's very important. Very important. LTE mobile network. Long-term evolution. Yes, a long-term evolution. Okay. Now, with this full form of this abbreviation, this respective abbreviation LTE. Now, please justify that the first point. Please explain the first point. Yes, sir. तो रिलायंस जियो जो था वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिम बना जिसने ऑल ओवर इंडिया में 22 सर्कल में 22 जोन्स को कवर किया था इन कंपैरिजन टू एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। एयरटेल ने टोटल 15 जोन्स को कवर किया था, आइडिया ने 10 जोन्स को और वोडाफोन ने 8 जोन्स को, और अकेला जियो जो था वो 22 जोन्स को कवर किया था। क्योंकि मुकेश अंबानी जी का जो स्ट्रैटेजी था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि पहले उन्होंने अपने सिम को पूरा फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल ओवर इंडिया में। तो जितने भी एयरटेल के कस्टमर्स थे, आइडिया के, वोडाफोन के, वो शिफ्ट होने लगे जियो की तरफ, क्योंकि फ्री में उन्होंने फ्री कॉलिंग भी, एक जियो के सिम में एक फ्री कॉलिंग भी उनको मिल रहा था, फ्री एसएमएस भी मिल रहा था, फ्री रोमिंग भी मिल रहा था, जो कि अदर मोबाइल के सिम में नहीं मिल पा रहा। Next line is that the service was first launched to Jio partners and employees on 27 December 2015. 27 December 2015 में पहला सर्विस लॉन्च हुआ था जियो के एम्प्लॉइज और पार्टनर्स के लिए। Later service was commercially launched on 15 September 2016. Okay. Its history: in June 2010, Reliance Industries, which is RIL, Reliance Industries Limited, bought a 90% stake in Infotech Broadband Service Limited, which is IBSL, for rupees 4,800 crores. Although unlisted, IBSL was the only firm to wide broadband spectrum as all 22 zones in India. The 4G acquisition that took place. पहली बार इंडिया में 4G एक्विजिशन जो था वो इंडिया में पहली बार यूज हुआ था, तो जो पब्लिक थी वो बहुत एक्साइटेड थी इस चीज को यूज करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जो थे। What is this IBSL? What is this IBSL? IBSL Infotech Broadband Service Limited. Okay.
So this is the Broadband Service Limited. This is the name of the service. ठीक है, launched by Yes, sir. Jio. You Launched want to by say this? Jio. Yes. Okay, Yes, fine. sir. The IDSL. Okay, fine. Yes. Later continuing as RIL Telecom subsidiary, IBSL was renamed as Reliance Jio Infocom Limited, which Okay, called fine. RJIL in January 2010. It was 2013 renamed. 2013 में रीनेम हो गया था सर. IBSL का जो रीनेम हुआ था वो हो गया था रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में. Okay, In fine. June 2015, Jio announced that it will start its operation all over the country by the end of 2015. फिर Jio ने ऐसा डिसीजन लिया कि 2015 के एंड तक, जून 2015 के एंड तक वो लोग एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे जो ऑल ओवर इंडिया में वो ऑल ओवर इंडिया को कवर करेगा. At the beginning stage, Jio was open only for employees. मतलब स्टार्टिंग में जियो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए बना था, जो सिर्फ एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं. बट धीरे धीरे वो इंडिया को तो ये मुस्कान आप ये बताइए कि ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई? पहले एम्प्लॉयज के लिए, हाँ, और अडॉप्शन जो है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का अडॉप्शन, हमने परसेंटेज आपको भी बताया होगा 13.5, 34, 34, 16. यस सर. तो ये किस में आता है? ये किस फेज में आएगा? एडॉप्शन में है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एडॉप्शन वाला परसेंटेज, उसमें कितना स्टेज है? पीएलसी में तो आपका ये स्टेज है, क्या कहते हैं, 4 स्टेज है, लेकिन एडॉप्शन में कितना है? एडॉप्शन इंट्रोडक्शन के पहले 2.5% हमने लिखवाया था आपको, 2.5%. ठीक है, दैट इज इट इज गिवन टू द एम्प्लॉइज सो दैट यू नो एनी प्रॉब्लम कम्स. ठीक है, तो वो एक्चुअली एक तरह का टेस्टिंग है. यस सर. वो टेस्ट हो गया, वो भी कंज्यूमर है, इस्तेमाल करेंगे, दे विल गिव द फीडबैक. इफ नेसेसरी कुछ कमी है तो फिर उसको रीचेक किया जाएगा, री इंजीनियरिंग किया जाएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन में प्रॉपर उसको लॉन्च किया जाता है. ठीक है, प्लीज प्रोसीड. The company commercially launched its service on 5th September 2016. Within the first month of commercial operation, Jio announced that it had acquired 16 million subscribers. सर एक महीने के अंदर ही अंदर इसने जियो ने पूरा फुल 16 मिलियन सब्सक्राइबर को अचीव कर लिया था. मतलब 16 मिलियन लोगों ने जियो का सिम खरीदा था. मतलब खरीदा क्या था, फ्री में ही मिल रहा था, तो उन लोगों ने यूज किया था. उन्होंने मतलब उसको एनरोल करा लिया, अपना आधार कार्ड ये सब देख करके एनरोल कराया प्रॉपर्ली. This is the fastest ramp up by any mobile network operator anywhere in the world. So पहले ही मतलब जैसे मैंने बोला कि ये सबसे पहला ऐसा फास्टेस्ट नेटवर्क बना जो कि ऑल ओवर इंडिया में पहली बार इतने इसके सब्सक्राइबर बने और ये पूरा इंडिया में मतलब रैंप अप हो गया. और ये जो फर्स्ट फेज में जो स्प्रेड था, जो मार्केट कवर हुआ, ये सबसे दुनिया में सबसे बड़ा था, ऐसा आपने बोला. Yes, sir. इतना बड़ा मार्केट, इतना नंबर ऑफ यूजर्स कभी नहीं हुए थे पैन वर्ल्ड. ओके फाइन. फिर इसका मिशन और मिशन ये था सर कि हार्नेस द फुल पोटेंशियल ऑफ द इंटरनेट टू क्रिएट अ डिजिटल रिवॉल्यूशन फॉर हाई स्पीड कनेक्टिविटी. सर मुकेश अंबानी जी को ये पता था कि आने वाले टाइम में डाटा का कितना बड़ा यूज होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक तरह से डाटा पे ही बेस रहेंगे. तो उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में ये इन्वॉल्व किया कि डिजिटली लोगों को ये दिखाया जाए कि डिजिटल होना कितना स्ट्रांग है, उनका स्पीड, उनका कनेक्टिविटी इतना हाई होना चाहिए कि ताकि लोगों को आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो. और रीजन ये था कि मूवमेंट दैट विल गिव इंडिया द पावर टू मेक देयर ड्रीम्स पॉसिबल. अभी के टाइम में जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप लोग और एम्प्लॉयज हो गए, सब अपने घरों पे हैं. तो अगर इस टाइम में नेटवर्क अच्छा और स्ट्रांग नहीं रहा तो हम लोग ऑनलाइन कुछ अच्छे से कर नहीं पाएंगे. जो आने वाले जनरेशन है उनको अच्छा खासा प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है सोशल नेटवर्किंग के जरिए, वो लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं. तो इसमें डाटा का होना बहुत जरूरी है और नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ था मुकेश अंबानी जी के जरिए जियो में, जो कि 3 गुना ज्यादा है एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को मिलाकर भी. और उन्होंने ऐसा फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था जिससे 40 टेराबाइट पर सेकेंड का स्पीड देता था जियो, इन कंपैरिजन टू एयरटेल जो 4 टेराबाइट पर सेकेंड ही मतलब सर वो दे पाता था. इट मींस 10x फास्टर देन अदर. जियो 10 गुना ज्यादा तेजी से अदर के मुकाबले वो काम होता था. ओके.
its objective, Reliance Jio aims to cover 99% population by end of FY18. Jio has built India's largest next generation all-star network with latest 4G LTE technology and beyond. Reliance Jio aims at providing internet services to the rural areas of the country. रिलायंस जियो जो था वो इंटरनेट रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करता था, कंट्री के रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करता था, ताकि कहीं भी किसी भी इंसान को कहीं भी रहे उसको नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, नेटवर्क का इशू ना हो। Okay, fine. तो यस सर, 105 करोड़ यूजर्स हैं हमारे इंडिया में मोबाइल के। उनके उनका रिपीट वंस अगेन, कितने यूजर्स हैं? 105 करोड़ यूजर्स हैं, 105 करोड़। अच्छा, 105 करोड़, सिर्फ 105 करोड़ ही यूजर हैं? नहीं, 105, सॉरी 130 करोड़ में 105 करोड़ तो पूरा तो हो गया, सही। ओके फाइन। और अभी तो सर मतलब आने वाले जनरेशन में जो छोटे बच्चे भी है वो भी काफी मोबाइल यूज करने लगे हैं अभी के टाइम में। तो they are also users, but actually they are using on the other connection, they are using the connection of the parents, उनको काउंट नहीं कर सकते। Okay fine, they are using, so they are the consumer but they are not the customer, and the number which you are saying 105, ठीक है, they are the customer, they have purchased it, yes है ना? ठीक, okay fine, please proceed. yes sir। सर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का जब हम लोग सिम लेते थे तो उसमें प्रॉब्लम ये आता था कि पहला तो सर हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता था उनका, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी रहता था और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लाइसेंसिंग रेगुलेशंस होते थे। बट जियो ने ऐसा अपना एंट्री बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसने लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी को यूज किया। लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं सर। इसमें होता है ये है कि जो मार्केट में एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट का जितना प्राइस रहेगा उस प्राइस का आधा दाम करके अपने प्रोडक्ट को बेचना, जिससे उनके भी कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेना और उनके कस्टमर को अपने तरफ इन्वॉल्व कर लेना। तो सर उनका एक ऐसा मतलब उनका प्लानिंग और उनका स्ट्रैटेजी इतना स्ट्रॉन्ग था कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया का मार्केट तो ऐसे उनके बहुत ज्यादा पैसा लगता था, तो काफी उनका स्ट्रैटेजी इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो काफी मतलब यूजफुल हुआ। और मुस्कान, माइक ऑफ हो गया आपका। यस सर, सॉरी सर, वो गलती से। तो इसको जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी द जियो इट अडॉप्टेड, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रेटजी, व्हिच मार्केटिंग? So the name of this strategy is loss leading strategy, sir. It's also called market penetration strategy. नहीं, आकांक्षा, you were saying something. सर वही लॉस लीडिंग मतलब पेनिट्रेशन ही हुआ ना एक टाइप से, मतलब प्राइस को कम करके। जब मगर नहीं बाबू, हिमांशु इसको मार्केटिंग कौन सा बोलेंगे? Sir, no idea. No idea. Anybody who is having idea? Anybody who is having idea sim will have the idea, not the Jio. Okay. जरा आकांक्षा गूगल में सर्च कीजिए तो डिसरप्टिव मार्केटिंग क्या होता है? डिसरप्टिव। यस सर, एक मिनट। But everybody please search what is disruptive marketing and please let me know. मुस्कान आप भी सर्च कीजिए डिसरप्टिव मार्केटिंग। सर ये तो वो मार्केटिंग है जिसमें बाकी कंपनीज का मार्केट को एकदम बर्बाद कर दिया जाता है और खुद के मार्केट को एस्टैब्लिश किया जाता है भले ही लॉस में होकर। ओके फाइन। आकांक्षा, ये मुस्कान मल्होत्रा इज शी राइट? आकांक्षा? यस सर। मुस्कान मल्होत्रा ने सही बोला? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, प्लीज प्रोसीड। मुस्कान प्लीज प्रोसीड। ये सर मार्केट का जो भी मतलब वो रहेगा वो पूरा रूल को ही चेंज कर देगा, ऐसा स्ट्रैटेजी। फाइन, ओके नेक्स्ट। तो मोबाइल डाटा के कंपैरिजन में हमारा देश जो 150 नंबर पे था, 150वें नंबर पे था, वो अब टॉप 10 के रैंकिंग में डाटा के मामले में आने लगा। नहीं, एक बार फिर से, सॉरी हमको सुना, एक मिनट बाबू, आवाज नहीं आई हमको, फिर से बोलिए तो एक बार ये बात। जब मोबाइल डाटा के कंजम्पशन में हमारा देश जो 150 मतलब 150वें नंबर पे जो आता था, अच्छा वर्ल्ड में 150 पोजीशन था। यस सर, 150 पोजीशन था, तो वो टॉप 10 के रैंकिंग में आने लगा। 1 to 10। यस सर।
Okay, that's क्योंकि great. सब पहले डाटा हम लोग खरीदते थे तो बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि उनका पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ता था, हम लोग को हर चीज के लिए पे करना पड़ता था। बट फ्री में सबको मिल रहा है, तो मैक्सिमम यूजर्स जो थे वो यूज करते थे, तो इससे टॉप 10 के रैंकिंग में हमारा इंडिया इन्वॉल्व हो गया। Okay, that's great. यस सर। मुकेश अंबानी जी का जो मेन फोकस था वो था सर ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी। ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व होता है एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेफरल और रेवेन्यू। तो रिलायंस जियो बिकम फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने 6 महीने में फ्री अल्टीमेट डाटा, फ्री कॉलिंग, फ्री रोमिंग सर्विस प्रोवाइड किया था। यस सर। So Reliance Jio is a serious threat to telecom stock। और ये जो है ये कुछ सिंबल्स और ग्राफ्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जियो के कवरेज को। ये जो आपका इंडिया का जो ग्राफ है ना, जी सर। ऑलमोस्ट पूरा तो कवर ही है। यस सर। ऑफ कोर्स ये ठीक है। अच्छा, एक 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 क्वेश्चन है हमारा, अगर ठीक है इसका पता करके बताइएगा। तो जितना भी जो ये ऑप्टिक फाइबर है, मतलब ये जो तार है जिसकी तस्वीर बनी हुई है, ये किस कंपनी से जियो परचेस करती है? मतलब जाहिर है जियो तो ये फाइबर बनाती नहीं होगी। नो ये सर। बनाना तो उनका काम नहीं है, उनको पास तो वो उन्होंने लाइसेंस लिया और उसका ये तो ये कौन सी कंपनी से ये लेते हैं? इसको जरा आकांक्षा आप गूगल सर्च कीजिए, बाद में बात करेंगे, ठीक है? यस। ओके, और मुस्कान प्लीज कंटिन्यू। Yes sir। So SWOT analysis, in this we are going to read about strength, weakness। So strength, स्ट्रॉन्गेस्ट कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। जियो का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो यही था कि सबसे ज्यादा कस्टमर्स इन्होंने एक्वायर कर लिया था। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस था इसका, टेक्नोलॉजी बहुत बेस्ट था, स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री जो थी, ब्रांड मैनेजमेंट इसका बहुत, यस सर, ब्रांड मैनेजमेंट इसका बहुत स्ट्रॉन्ग था, फास्ट एंड वाइड नेटवर्क था, मल्टीपल ऑफरिंग अंडर अ वन सिंगल ऑफर। सर one stop shop। यस सर। This is called one stop shop concept। one stop shop concept। यस सर। मतलब कि सर आप एक सर्विस के लिए पे कीजिए और आपको इसके अंदर ये सारे सर्विस फ्री मिलेंगे। You will get a bundle of services। यस सर। Okay। वीकनेस में सर आगे हमारा लेट एंट्री इनटू द मार्केट इन कंपैरिजन टू एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। तो लेट एंट्री कैसे है? ये तो पहले तो इन्हीं को लाइसेंस मिला, इसमें लेट एंट्री कहाँ है इनका? They are the pioneer। पहले यस सर, यस सर, बट लेकिन एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन मतलब अच्छा, वो जियो 2G से पहले, मतलब 2G से शुरू हो रहा है। यस सर, 2G से शुरू हो रहा था। ओके, यस सर। ये डायरेक्ट 4G में आ एक्टिवेशन गया। इश्यूज, यस सर, एक्टिवेशन इश्यूज होता था, प्राइसिंग कंट्रोवर्सी भी काफी हुई, टू मैनी फ्रीबीज हुए और डाटा कनेक्शन भी पुअर मतलब थी इसका। अब तो सर खैर डाटा में भी कभी कभी कनेक्शन में भी बहुत वीकनेस है। ओके, अपॉर्चुनिटी ये है सर कि फ्यूचर ड्राइविंग टेक्नोलॉजी 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी है। तो मतलब कि जियो है वो पहला ऐसा सिम है जिसमें 5G और 6G की टेक्नोलॉजी को मतलब जिससे काम कर रही है। एप्लीकेशन 6G भी चल रहा है, मतलब एक्चुअली आई डोंट नो, इट्स अ न्यूज़ फॉर मी। 5G पे तो चल रहा है, 6G पे भी चल रहा है। सर 6G पे भी आगे मतलब ऐसा हो सकता है कि वो लोग काम करें। नहीं, मतलब करंट स्टेटस क्या है? 5G तो कंफर्म है, दैट आई नो। 6G भी है, एक्चुअली आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सर करंट स्टेटस तो अभी 6G पे कोई प्लान मतलब ऐसा कुछ ये नहीं चल रहा है, 5G पे ही चल रहा है। और 5G के फोन ये सब भी मतलब कि आएंगे। 5G पे तो चल रहा है ऑफ कोर्स। यस सर। ठीक है, प्रोसीड। नहीं, जो भी कंफर्म, जो भी आप पीपीटी में आप लिखिए ना, तो पूरा कंफर्म होके लिखिए, मतलब 6G पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो 5G पे ही तो लॉन्च नहीं हुआ है, तो दे विल कंसंट्रेट ओनली ऑन 5G। यस सर, लेकिन फिर इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके फाइन, प्रोसीड। यस प्रोसीड। एक्सपेंशन टू अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में भी जियो का अपना सिम एक्सपेंड हाँ, करेंगे। अपॉर्चुनिटी है।
यस सर, सेट इसका ये कि रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कस्टमर, हर बिजनेस में सर ये होता है, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कस्टमर। अगर अच्छा मतलब सर्विस प्रोवाइड नहीं हुआ, नेटवर्क अगर पुअर रहा, तो हम लोग ये हुआ होता क्यों है एक्चुअली? रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कस्टमर क्यों होता है? सर अगर एग्जैक्ट कस्टमर के हिसाब, यस सर, अगर कस्टमर के हिसाब से उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रहा है और उससे बेटर अगर कोई और सर्विस दे रहा है उसी रेट में, तो कस्टमर स्विच करके वो दूसरा चीज चूज करेगा, क्योंकि कस्टमर अगर एक चीज के लिए पे कर रहा है और उसको इसमें एक बात और आई वुड लाइक टू ऐड, मतलब जस्ट इट इज माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि जैसे अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के वादा करते हैं, है ना, यस सर, अपना कि हम इतना बेहतर करेंगे, मतलब यू क्लेम मोर बट यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई एज विद रिस्पेक्ट टू योर क्लेम, ठीक है, तो उसमें फिर थोड़ा सा ना वो एक मायूसी होती है कस्टमर के एंड से कि भाई उन्होंने इतना बोला था और दे रहे हैं ये, तो उसमें थोड़ा फिर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कस्टमर होता है, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द कस्टमर, ये कॉम्पिटिशन एंड द बेटर सर्विस प्रोवाइडर, सिर्फ वो बात नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है इंडिया का और सबके पास अपना अपना मार्केट शेयर है, जो नया भी आएगा ना उसको भी उसका मार्केट शेयर मिल जाएगा, क्योंकि हाँ स्कोप बहुत ज्यादा है, इट्स अ कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी। उसमें लॉस इसीलिए होता है कि आप कमिट बहुत करते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं अपने वादों में, बहुत ज्यादा बोल देते हैं और उतना पूरा नहीं हो पाता है, वहां पे थोड़ा मायूसी हो जाती है। खैर, प्लीज प्रोसीड। changing government policies, highly competitive market, rapid upgradation in technology। आने हर मतलब हर कुछ घंटों में, हर दिन में टेक्नोलॉजी जो होता है वो नहीं, अपग्रेड हो जाता है। रैपिड अपग्रेडेशन जो है ना, रैपिड अपग्रेडेशन तो अपॉर्चुनिटी है। रीजन बीइंग कि जितना रैपिड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगा तो द कंपनी हु इज हैविंग अ वेरी डीप पॉकेट, जिनके पास ज्यादा दौलत है, वो जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे ना, जिनके पास कम दौलत है वो लेट करेंगे, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से, ये थ्रेट नहीं है। रैपिड अपग्रेडेशन द टेक्नोलॉजी, ये स्पेशली फॉर जियो, ये और एंड एयरटेल एज वेल, because Airtel and this Jio, and then followed by this one Vodafone Idea, इनका भी बहुत सबसे ज्यादा मार्केट शेयर तो इन्हीं का है, वोडाफोन आइडिया, यही है ना, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किनका है? दोनों कंपनी मर्ज करी। यस सर, हाँ सर जब जियो का सिम मार्केट में आया था तो पूरा भीड़ उमड़ पड़ा था, बहुत बिल्कुल। लोग, मैक्सिमम बहुत। यस सर, so now sir the question arises is why Jio? वाह जियो। Yes sir, the next slide। So in this we are going to know about what is the difference between before Jio and after Jio. So before Jio there is high base rate, 16,000 plans to confuse customers, roaming, they take roaming charges, they take high data rates, voice charges, pay for every services separately और blackout। हम लोग को हर सर्विस के लिए एक अलग से, मतलब अगर हम लोग को फ्री डाटा चाहिए तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ता था, फ्री कॉल चाहिए उसके लिए अलग से, ये सारा प्रॉब्लम था, सही बात, तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। और आफ्टर जियो के बाद जो था वो बेस रेट हो गया था ₹250 पर जीबी। सिंपल स्ट्रक्चर था जियो का, इंडिया फ्री रोमिंग है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लोएस्ट डाटा रेट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोएस्ट डाटा रेट है इसका, ट्रूली फ्री वॉइस, ओनली पे फॉर वन सर्विस, एक सर्विस के लिए आप पे कीजिए और आपको ये सारा फ्री वॉइस कॉल, फ्री SMS, सब चीज आपको फ्री में मिल रहा है, नो ब्लैकआउट, अनफेयर चार्जेस, यस सर, और कोई अनफेयर चार्जेस नहीं दिया जाता है। डाटा एक्सप्लोजन, Jio has created world record for fastest 100 MN acquisition, market expanded 6x with introduction, yes sir, introduction of Jio in less than 6 months, as we all talk about that 6 months के अंदर ही उन्होंने अच्छा खासा मतलब अपना मार्केट को कवर कर लिया था ऑल ओवर इंडिया में। ऑफ कोर्स इनका पेनिट्रेशन जो बहुत शानदार, ऑफ कोर्स, but because of the free offer and the wide network launch, distribution, yes sir, because yes sir, क्योंकि सर शुरू के 6 महीने तक इन्होंने फ्री सिम जो डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर 4G सिम यूज करने के लिए लोगों को 4G मोबाइल भी चाहिए होता था, तो इन्होंने 4G, पहले तो 4G सिम फ्री में बांट दिया, फिर
4G मोबाइल भी अपना लॉन्च कर दिया, तो उनको लोगों को मोबाइल भी खरीदना पड़ा। Okay. The conclusion is that Reliance Jio main objective is to share high-speed internet. We are being opinion that Reliance Jio will be successful in next 3 to 5 years. It will also generate market share competitively within 5 years. Of course. Yes, sir. That's all. Thank you. Okay. Thank you very much. ठीक है, ये अच्छे से प्रेजेंटेशन आपने दिया और प्रेजेंटेशन को आपने अच्छा जस्टिफाई किया, मतलब ये आपने इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया था बहुत सारा, तो डेटा था, इंफॉर्मेशन भी आपके पास था, कंटेंट था आपका, ग्रेट। ओके, Thank you. थैंक यू।